Namaskar, good evening. You're watching Breaking Ground and I am Swati Joshi. Let me first take you through what is the top focus at 5. Congress President Mallikarjun Kharge's rotten mango remark has sparked an interesting debate, with the BJP taking a dig at Rahul Gandhi. BJP says the larger message is actually for Gandhi Sion. We'll debate whether Rahul Gandhi is the rotten mango that Mallikarjun Kharge is talking about. Next, Trump's close ally and right-wing activist Charlie Kirk shot dead in broad daylight. We'll do a deep dive on who was Charlie Kirk and what do we know so far about the shooting incident. Later in the broadcast, fed up of government's inaction, a group of school children fill up potholed roads on their own in Mangaluru after a woman lost her life in a pothole-related incident. Will public now have to do the job of the government that has been elected, that has been given a mandate to look after the priorities and basic needs of people? We ask the Janata and we'll tell you what you think about this issue. So as the Congress party struggles to regain its political foothold, party chief Mallikarjun Kharge has had enough. In a strongly worded message, the Congress president hit out at non-performing leaders, saying some shirk work and instead blame the voters. Kharge stressed that such netas and those eyeing a switch to the opposition camp should be shown the door immediately. But the highlight of this message was an analogy. One rotten mango can spoil the entire basket. Let's first listen into that remark. मैं ये इसलिए आते ही मेरे को जो दिए मैं थोड़ा पढ़ा और बोला कि ये क्या है, तो हमारे ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब ने बताया, साहब ये परफॉर्मेंस है और ये ऑर्गेनाइजिंग डेवलपमेंट है और ये रैंकिंग है, उन्होंने जो जो काम किया। अब इसी के ऊपर आपका अंदाजा हो और ट्रेनिंग करने वालों को भी मैं बोलूंगा कि इसका ध्यान रखें और जो लोग काम नहीं करना चाहते और आप लोग जनता पे थोपना चाहते हैं तो ये नहीं होगा। अगर ऐसे लोग हैं, मुकुल जी, आप और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिलके फौरन ऐसे लोगों को निकाल दो, क्योंकि एक सड़ा आम सारे को जो टोकरी में रहते सब आम को खराब कर देता। तो इसीलिए जो जल्दी जाने वाले हैं जाओ, दूसरे को उसमें वहां पर लाइए। But this is not the first time the Congress chief has warned of action against underperformers. Earlier this year, Kharge reminded his party that the leaders who are not discharging their duties should retire. The BJP has quickly latched on to Kharge's remarks, asking if his jibe was directed at Rahul Gandhi, citing Rahul's past election failures as proof. खड़गे जी, ये इशारों में किसको संदेश दिया जा रहा है? कौन है जो चुनाव हारने के बाद भी अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले वोट चोरी कह रहा है और डिल्यूजन में रह रहा है? अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में, कांग्रेस में, रेस का घोड़ा है, बारात का घोड़ा है और एक लंगड़ा घोड़ा है। अब रेस के घोड़े 99 चुनाव तो हारेंगे नहीं, बारात के घोड़े हैं या लंगड़े घोड़े हैं, उन्हीं के अनुसार जो लोग 99 चुनाव हराते हैं, या वो खराब आम है खड़गे जी के अनुसार। वैसे कार्यकर्ताओं की तुलना घोड़ों से करना, आम से करना, ये उनकी पार्टी में चलता रहता है, पर खड़गे जी सच बताइए, ये संदेश किसको दिया है? Well, only a few weeks ago, Rahul Gandhi had remarked that there are several lame horses within the Congress who needed to be retired. Now, Kharge's comments coming on the heels of that statement have only given further ammunition to the BJP. The Congress, however, has hit back, insisting that BJP is obsessed with and scared of visionary leader Rahul Gandhi. मैं समझता हूं कि जो संगठन सृजन का हमारा अभियान अभी भी चल रहा है, 3 राज्यों में अभी हमारे जिला अध्यक्ष में इस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन हो और वो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप हो। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो वो हर चीज में सोते जगते उन्हें राहुल गांधी जी नजर आते हैं। राहुल गांधी जी प्रॉपर वे में वीसा आपने दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो एक डरी हुई है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी एक दूरदर्शी नेता है, स्पष्टवादी,
दूरदर्शी नेता हैं, जिन्होंने संविधान के बारे में बहुत स्पष्टता से जो आज कह रहे हैं वो सामने नजर भी आ रहा है। All right, let's open this up and go across to our guests. We have Charu Pragya, spokesperson of the Bharatiya Janata Party, joining us along with Professor Akhil Swami, political analyst. Charu, let me come to you first. Why is it that the BJP thinks the larger message is perhaps for Rahul Gandhi? Congress party says BJP is obsessed. सोते जागते आपको सिर्फ राहुल 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 नजर आता है. कांग्रेस पार्टी में राहुल के अलावा है कौन स्वाति? प्लीज टेल मी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को और कौन नजर आता है? आई एम श्योर दैट द पार्टी हैज पीपल हु आर कॉम्पिटेंट एंड मे बी द पार्टी इज कंफ्यूज्ड political analogy with cricket. In politics, 99 not out is not a compliment. Professor Akhil Swami? Swati, I can hear myself. Okay, all right, we'll get that sorted. Can we fix this so I can speak again, please? Yes, we will fix that, Charu. Yeah. And I request you to please... No, I want to speak, but Go I can ahead. only hear myself talk. Okay, go ahead. Meanwhile, we'll fix it. Yeah. So, very quickly, I also want to point out that the tallest leaders Congress party has boasted of for decades have all left the party citing Rahul Gandhi as the reason. And that is no mere coincidence. If in spite of that, if somebody wants to talk about rotten mangoes and does not have the courage to take Rahulji's name, we are helping him. We are helping him define that where does the rottenness begin and where it should end if the party wants to progress. Let's start with Himanta Biswa Sarma ji. What was his reason for leaving the party? It was Rahul Gandhi. Jyotiraditya Scindia. His reason for leaving the party? Rahul Gandhi. Captain Amrinder Singh. His reason for leaving the party? Rahul Gandhi. Let's move on. Let's talk about more people. Ghulam Nabi Azad ji. His reason for leaving the party? Rahul Gandhi. And these are not names who have not proved their mettle time and time again. And in spite of that, if all these people after decades of experience take one single name while resigning from the grand old political party, the party should pay importance to that. Okay. Let me bring in Professor Swami. Then Professor Swami, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे नाम नहीं ले पा रहे? BJP says we are only helping Mr. Khadge point in the right direction. देखिए स्वाति, वास्तविकता में ये जो लड़ाई है ये एक तानाशाह और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिलीव करने आदमी के बीच में है। राहुल गांधी को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोकते हैं वो उन्हें फ्लाइंग किस देते हैं और उनको चॉकलेट देते हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी वाले कार्यकर्ताओं को ये अनुमति देता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कि राहुल गांधी की गाड़ी पे चढ़ जाए। दूसरी तरफ जब मोदी जी बनारस जाते हैं तो जितने भी समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जितने भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है। ऐसा तो मैंने इमरजेंसी में भी नहीं देखा। मेरे ख्याल से बाकी लोगों का, आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, मैंने तो इमरजेंसी में विरोध किया था इंदिरा गांधी का। इतना ज्यादा तानाशाही प्रवृत्ति मैंने तब भी नहीं देखी। संजय सिंह फारूक अब्दुल्ला से मिलना चाहते हैं, उनको पुलिस रोक देती है, गेट रोक देती है, दोनों सांसद है। तो देखिए इस प्रकार की तानाशाही का तो अंत होना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था चलनी है। लेकिन मोदी जी जनता से इतना डरते क्यों है, मुझे समझ नहीं। वो एक अलग, अब आप किसी और ट्रैक पर अब जा रहे हैं। चारू प्रज्ञा, मुझे पता है शी इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट एज वेल, पर आप एक अलग ट्रैक पर जा रहे हैं। यहाँ सवाल अंडर परफॉर्मर्स पर उठाया जा रहा है। चारू प्रज्ञा ने कुछ नाम गिनवाए, उनका कहना है कि ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके गए राहुल गांधी का नाम लेकर, लेकिन क्योंकि गांधी परिवार के इसलिए उनके खिलाफ तो कुछ होगा नहीं, तो अब चलिए वर्कर्स के ऊपर ही एक्शन लीजिए। चुनाव हार जाए तो सीधा कहिए कि वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लंगड़े घोड़े हैं, रेस के घोड़े हैं, शादी के घोड़े हैं, वगैरह वगैरह। स्वाति, आपको बहुत दिन चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब जनता जो है ना वो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल, अब वो चुनाव आयोग भी बेईमानी नहीं करा पाएगा। अब 5 बजे के बाद 10% वोट भी नहीं पड़ेंगे। अब ये जो चुनावी लिस्ट में हेरा फेरी करते हैं, अब जनता इनको वो भी नहीं करने देगी। मैं केवल भारतीय जनता पार्टी की अपनी जो पैनलिस्ट है उनसे निवेदन करता हूँ, नेपाल की तरफ देख लीजिए, बच्चों को नौकरी दे दीजिए। इसका क्या मतलब? सड़क पे निकलना मुश्किल हो जाएगा। नहीं प्रोफेसर स्वामी, इसका क्या मतलब है? किसानों को एमएसपी दी। भारत में जो स्थिति, उसकी तुलना आप नेपाल से कैसे कर सकते हैं? और ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल है? नहीं, ये किस तरह की भाषा है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नहीं, एक मिनट, एक भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है क्या? भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है क्या? बच्चों को नौकरी दीजिए। अपने आसपास आप देखिए, अपने आसपास आप देखिए क्या वजह रही, क्यों ये सब कुछ हुआ और भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रही।
हालांकि मेरा सवाल ये नहीं था, आप मेरे सवाल से बच रहे हैं, बट आई नो चारू वांट्स टू कम इन नाउ। लाठी से सिर फोड़ देते हैं, चारू वांट्स टू कम इन। करते हैं बच्चों के Can सिर I, फोड़ yes, देते can हैं। I Yes. come in? And can I please request the Congress panelists to now wait for his turn to अब speak? प्रोफेसर स्वामी आप सुन लीजिए। I don't want to speak आप over. सवाल का जवाब अरे भाई साहब रुक जाइए, लिसन टू चारू। रुक जाइए, अब सुन लीजिए। आपके फॉल्स नैरेटिव्स और आपकी झूठ की जो दुकान है आपने बार बार खोल के बैठी, और इस देश की जनता ने बार बार उसको नकारा। बार बार इस बात को आप एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। अराजकता फैलाना आपने अपना धंधा बना लिया है। दुनिया में कहीं पर भी कोई परेशानी आपत्ति आती है, आपकी अंतरात्मा से आवाज आने लगती है भाई यही चीज भारत में होनी चाहिए। आप क्या धमकी दे रहे हैं भारत में? नहीं होनी आप चाहिए, धमकी दे रहे हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर अराजकता भारत में फैले। नहीं जब ऑल आर नेबरहुड कंट्रीज, अब आप चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। Swati, no, I mind being interrupted. I also take a lot of offense at Congress leaders who are comparing India every single time to problems in our neighboring countries. Sri Lanka faces an issue, they say, "Arey, India में होने वाला है." Bangladesh faces an issue, they compare it to India. Today it is Nepal, they compare it to India. India is stable. India is stable because India is being led by Prime Minister Modi ji and very ably led. Third time in a row. And for a third time in a row, your party has been rejected at a national level. Instead of acknowledging that, you are running around here and there and talking about every single thing. आपने चुनाव आयोग का नाम लिया, इलेक्शन कमीशन का नाम लिया। मुझे एक बात बताइए ना, जिस तरीके से आप चौकीदार चोरे चिल्ला चिल्ला कर थक गए, अब होगा न्याय चिल्ला चिल्ला कर थक गए। अब आप वोट चोरी चिल्ला चिल्ला कर थक जाओगे जब जनता ही आपके साथ नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। Also, Charu, let's not fall in this trap. Let's not fall in this trap. Professor Akhil Swami is trying to derail the debate. Professor Swami is trying to divert attention and derail the debate. Let's not fall in this trap. Professor Akhil Swami, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने कहा था मैं एटम बॉम्ब डालूंगा, इलेक्शन कमीशन गायब हो जाएगा। वो एटम बॉम्ब खुद ही फुस हो गया। इलेक्शन कमीशन अभी भी वही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, मुझे लगता है कि आपको पता होगा। अब राहुल गांधी एक हाइड्रोजन बॉम्ब की बात कर रहे हैं, तो इस चीज को भी मल्लिकार्जुन खड़गे को देखना चाहिए। नैरेटिव्स भी फेल हो रहे हैं, लीडरशिप तो दूर की बात है, अब तो नैरेटिव्स भी फेल हो रहे हैं। प्रोफेसर स्वामी, तो कौन है जो पूरे कांग्रेस को बिगाड़ देगा? Who's the rotten mango then? बनारस के अंदर मोदी जी की यात्रा को देखने के लिए 5,000 आदमी नहीं है, और जब यूपी बिहार के अंदर तेजस्वी और राहुल निकले, लाखों बच्चे सड़क पे थे। अरे सर, भीड़ से अगर अंदाजा लगाया जाता, नहीं, इससे पहले आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर स्वामी? इससे पहले राहुल गांधी ने कभी कोई रैली नहीं की क्या? इससे पहले राहुल गांधी की रैली में क्या कभी कोई भीड़ नहीं आई? और अगर भीड़ आपके लिए सबसे बड़ा पैरामीटर है, तो अब तक हर एक इलेक्शन, लोकसभा से लेके असेंबली इलेक्शन, कांग्रेस पार्टी को जीतना चाहिए था। इफ अकॉर्डिंग टू यू क्राउड इज अ पैरामीटर, प्रोफेसर स्वामी, तो क्यों चुनाव हारे? यू शुड केयर फॉर योर यूथ। यू आर ऑल्सो यूथ। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, और अडानी जी सबसे बड़े पूंजीपति बन रहे हैं। फील केयर्ड फॉर ना चारू। देखिए, ऐसा मुझको लग रहा है स्वाति दैट ही टोटली लॉस्ट द प्लॉट लाइक हिज लीडर हैज। अगर बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही होती तो भाजपा को बार बार सपोर्ट नहीं मिल रहा होता इस देश की जनता का, जिनकी आप दुहाई दे रहे हैं वही लोग आपके साथ नहीं है। और आप फिर आप बीच में बोलने लग गए। को जवाब देने दीजिए प्रोफेसर स्वामी। नाउ अलाउ her to 1 second. प्रोफेसर स्वामी, अलाउ चारू टू स्पीक। स्वामी साहब, आप थोड़ी देर चुप होके मेरी बात सुनिए। आपके ऊपर मैं नहीं बोलती हूँ, मेरे ऊपर आप मत बोलिए। देखिए, the important thing here is that every allegation they are levying on the election commission today has been thrown out by the honorable court itself, so I am not going to dignify that with an answer. The important thing here is, आप पैदल चलते हैं तो आप मैराथनर बन जाते हो, आपको देखने भीड़ आती है तो आप कॉमेडियन बन जाते हो, आप पॉलिटिशियन तो हो ही नहीं। Your leaders are failing. The leaders who actually did well in their regions left your party citing राहुल गांधी as the reason. राहुल गांधी, मैं और नाम दे देती हूँ, जितिन प्रसादा का नाम दे देती हूँ, मिलिंद देवरा का नाम दे देती हूँ, हार्दिक पटेल का नाम दे देती हूँ। पहले मैंने कम गिनाए होंगे तो और गिना देती हूँ। तो जब यू आर अनविलिंग एंड टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू द एक्चुअल प्रॉब्लम इन योर पॉलिटिकल पार्टी, व्हेन यू आर अलाउइंग एंटाइटलमेंट टू ओवरराइड ऑल kinds of meritocracy, this is going to be the result, and this is what Congress is facing. See, we can only point it out, right? It is up to them to recognize it. Okay, before I wrap up, I quickly want to bring in Professor Swami. Professor Swami, the Congress party keeps talking about Maharashtra elections. Does the Congress party not know what the Supreme Court said?
पहले बॉम्बे हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन पिटिशंस को ही रिजेक्ट कर दिया, कहा कि आपके पास तो एविडेंस ही नहीं है फ्रॉड का, तो क्या फ्रॉड की बातें कांग्रेस पार्टी करती है? देखिए, मुझे लगता है चारू शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एमए नहीं, मुझे आशा है कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस वो नहीं पढ़ी है। दूसरी साधारण जनता को जेल भेज दिया जाता है फॉल्स डिग्री पे, और यहाँ कोर्ट से कहलवाया जाता है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। डिग्री दिखानी चाहिए भाई। स्वामी, इस पूरी डिबेट में आपने चारू को अटैक किया और आपने बीजेपी को अटैक किया। सवाल मेरा राहुल गांधी पर था, नहीं, सवाल मेरा राहुल गांधी पर था, उस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर मेरिट कांग्रेस पार्टी के लिए इतना जरूरी है, अगर मेरिट इतना जरूरी है, तो वो तो टॉप लीडरशिप से तय करना चाहिए ना। मेरिट नहीं, ये पर्जरी होती है। नहीं, पर्जरी है। अच्छा, डिग्री का दिखाना पर्जरी है। कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं प्रोफेसर स्वामी? इट completely shows and exposes that you do not want to take these questions, or perhaps even you don't have any answers. और किसी के ऊपर पर्सनल रिमार्क करना प्रोफेसर स्वामी is something that I will not accept and won't allow. Thank you very much, Charu Pragya and Professor Swami, for joining us.